हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। आज का टॉपिक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो जहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज की बात है तो नेचुरल से जहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज की बात है तो नेचुरल का मीनिंग तो आप समझे हैं, हम सब जानते हैं। नेचुरल मीन्स कुदरती, प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचुरल मीन्स प्रोवाइडेड by nature, provided by nature। तो resources means useful things, useful things। अब natural resources, natural resources एक दो जुमलों का इसमें दो वर्ड्स हैं। One is natural and other is resources, and we know that natural means the things which are provided by nature, and resource means the useful things. Now we can define it, we can conclude it on the basis of the meaning of these two words, that is the natural. When the natural means provided by nature and resource means useful things, now we can conclude, we can generalize, and we can write a definition of this natural resource. Natural resource are the resources provided by nature for survival and use of living beings। ऐसी कुदरत की दी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल हैं और कुदरत की दिए हुए हैं, जो किसी भी जिंदा चीज़ को जिंदा रहने के लिए और उसके यूज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स, उनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम जिंदा रहें, ताकि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ें। आप अगर इसको लिखना चाहेंगे आप इसको लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रोवाइडेड by nature for survival and use of living beings। ये डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्स की। क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स, and it is better for we that we must know the definition of our chapter, that is a natural resource. And natural resource is consists of two words, that is nature, natural and resource. Nature means provided by nature, natural means provided by nature, and resource mean useful things. And on the basis of the meaning of the two words, we can conclude, we can generalize a definition of this natural resource, that is natural resources are the resources provided by a nature for the survival and use of living beings। ऐसी कुदरत की दी हुई चीज़ें जो इंसान को जिंदा रहने के लिए
उनको यूज़ करके तो इंसान जिंदा रहे, अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इंसान की नहीं बात है, बल्कि पूरे जो भी लाइफ है, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, वेदर दे बिलोंग्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल स्फीयर, वेदर दे आर फ्रॉम एक्वेटिक, whether they are from arboreal, because all the living beings are classified into different groups on the basis of their characters and features. हम नहीं कहेंगे कि the only human beings are the living, while other millions of the creatures which is present on this world, they are also living, and those activities which are performed by us or performed by all other living organisms for the survival of their those organisms. They survive, they perform all those activities, they continue as their races. Means there are the things on this earth which are visible, but there is another world which is not visible. As we know that on the earth there are different types of living organisms, means there are animals, there are birds, there are fishes which are visible, there are plants, there are different types of plants, there are small plants, there are big plants, but there is another world, that is microorganism. And these microorganisms which are foe and friends of we, मीन्स आजकल जो चल रहा है कोविड-19 की बात जहाँ तक हम करें, तो दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस इज ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट सीन। अगर इसको देखा जाता तो इतनी टेंशन नहीं होती, और एक थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इट मीन्स इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट विजिबल, एंड इट इज नॉट फ्रेंड, इट इज ए फो ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It can create so many diseases, and in most of the occasion it provides the persons, the individual suffering from that virus can be dead. With the death takes place in the organisms which suffer from this COVID-19. It is a virus. अगर वायरस है तो it is invisible. It means that virus has life. उसकी भी लाइफ है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए उनको भी कुछ चाहिए। अगर उनको चाहे, मीन्स हमारे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो हमारे लिए जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं। जैसे हम बात करें कि ऐसे बैक्टीरिया विच कैन कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो दही में, दूध को दही में तब्दील करता है, और दैट इज ए यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो हमारी सेहत के लिए हमारी इसको अच्छा ये देता है। मीन्स हम ज़्यादा नहीं इस पर करेंगे कि जो भी सर्वाइव करता है, जो भी सर्वाइव करता है और जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी वो विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। और नाउ थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ेंगे कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, हम बात करेंगे कि हमारा मतलब चीज़ें बहुत सारी हमारी, जैसे हमारा सन है, जब हमारा सन है, हमारा सी है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, फिर हमारी लैंड है, हमारी लैंड है। देखिए हम ओशन से, सी समंदर है, सूरज है, सी है, एटमॉस्फेयर है, फिर हमारी लैंड है। तो इसमें होता क्या है, व्हाट इज सन? सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार एंड इट इज आवर बिगेस्ट स्टार। हमारा सन जो है, ये सन जो है ये हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम बात करें कहीं कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ताकत हमारे अंदर है, जो ताकत हमारे तेल के अंदर है, जो ताकत हमारे खाने के अंदर है, जैसे हम बात करते हैं कि वी नीड एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन हम यहाँ नहीं करते, लेकिन ज़िमनन चूँकि ये टर्म को
डिफाइन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बात जहाँ तक हमने बात की कि द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक एनर्जी की बात आ गई, तो एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। हम किसी काम को करते हैं तो इट मीन्स वी नीड एनर्जी। अगर एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो फूड से मिलती है, तो इट मीन्स जो फूड से हम एनर्जी लेते हैं वो उसको कहाँ से आती है, तो ऑल द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए सन। सन जो है पूरा ऑपरेट करता है निज़ाम। मतलब आप सपोज कीजिए कि सपोज अगर सूरज नहीं होता, विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है? इज इट पॉसिबल कि इस यूनिवर्स में जो है ये लाइफ चलती? ये पॉसिबल नहीं है। ये सूरज ही है जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है एनर्जी। अगर जो एनर्जी इंडिविजुअल में है, जो एनर्जी हमारे गैसेस में है, जो एनर्जी हमारे लिक्विड में है, जो एनर्जी हमारी वुड में है, जो एनर्जी हमारी मेडिसिन में है, जो एनर्जी हमारे फूड ग्रेन्स में है, ऑल इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एनर्जी ऑफ सन। सारी जो है वो सूरज से वो रिसीव होता है, सारा ये वो एनर्जी है, हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमारे ये जो है कि हमारी अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो प्रोवाइड करता है। तो अब सन जो है, सन चूँकि ये हमारी ज़मीन पर नहीं है, हालांकि ये जो है द बिगेस्ट, इट इज़ ए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, बट वी कैन नॉट से दैट वी कैन गेट द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। एक तो है ऑपरेट करता है द वाटर साइकिल जो है, हम बात करेंगे इसको अभी। तो अभी हमारे पास सी जो हो गया, समंदर जो वाटर है, समंदर में जो है वो दैट इज वाटर। हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये ईयर है, हवा है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर हमारी लैंड है, लैंड मीन्स सॉइल है जो क्रस्ट है। तो हम इसको पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज तीन तरह की हमारे पास है। ज़मीन पे जो रिसोर्सेज हमारी हैं वो तीन हैं, जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं वो तीन हैं, दैट इज वाटर, एयर एंड सॉइल है। लैंड हम बोल देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज necessary for us that we will write the definitions of these three resources. हम बात करेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी एटमॉस्फेयर खला है, जैसे हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं तो ज़मीन को चारों तरफ से जो हमारी ज़मीन है, इट इज़ इलिप्टिकल, इट इज़ जस्ट लाइक एन एग। सो व्हाट सराउंड्स द आवर अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो है इसका एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट है, एक कंबल है, इसके बाहर से एक शेल है, जैसे हमारा एग है। एग को आपने बॉईल करके उठाया है, शेल इसका खोल है। इट्स जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट है विच सराउंड्स द अर्थ। हम इस पे लिखेंगे अगर, तो हमारा नंबर वन व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर it is atmosphere is the blanket of air. Atmosphere is a blanket of air. सिंपली आप बोल तो एक कंबल है, एक जैसे मैंने बोल दिया कि खोल, एक अंडे के बाहर से जो शेल है उसका खोल है, तो समझ लो ऐसे है। which surrounds the earth, blanket of air which surrounds the earth, which surrounds the earth। अब हमारी ज़मीन के चारों तरफ जो है वो जो है ये हवा से घेरा हुआ है, और इसको हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर को जब हम स्टडी करेंगे तो इट एक्सटेंड अप टू 35 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर तक होता है ज़मीन के चारों तरफ। और ईयर जो है इट इज़ अ लाइफ सपोर्टिंग, क्योंकि द आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स,
आज के दौर में सोलर सिस्टम, द सन एंड 8 प्लैनेट्स आर देयर, बिकॉज जो आउटर जो है वो आउट ऑफ उस वे से चला गया है। आज प्रेजेंट जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं, एंड आउट ऑफ दिस 8 प्लैनेट्स दिस अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए स्पेशल, हैज ए यूनिक पोजिशन। इसकी एक यूनिक पोजिशन है। यूनिक पोजिशन क्यों है? क्योंकि एयर इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, सो द लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ये जो हमारी लाइफ जो है दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, अदरवाइज दूसरे प्लैनेट्स जो हैं दे आर बिगर देन दैट ऑफ अर्थ, बट द लाइफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द कंडीशंस, द क्राइटेरिया, द कंडीशंस which are necessary for the life are not present in other planets. So all those conditions are present on the earth, so it is a unique position in the solar system. उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी ये एटमॉस्फेयर है, it is just like a blanket of air which surrounds the earth. ये चारों तरफ है हमारी जमीन के, और ये है तभी तो इसमें लाइफ है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाटर की बात हम करें तो वाटर को दूसरी इस लैंग्वेज में, द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इसको हम बोल देंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, फिर हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर को हम डिफाइन करेंगे वो पार्ट, जमीन का वो हिस्सा, द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर। हम सीधा hydrosphere, it is the area of earth, the area of earth which is covered with water, जो पानी से भरा हुआ है। तो पानी से भरा हुआ कैसे मीन्स, हमारा ज़मीन के, अगर हम ये अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा कि अगर हम 10 हिस्से किए करें ज़मीन के, तो इसमें 7 हिस्सा पानी और 3 हिस्सा खुश्की है। इट मीन्स दैट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, एंड द वाटर इज नॉट in the form of water only, but it is in the form of lake, ponds, underground water too. Underground, अगर पानी के अंदर भी, जमीन के अंदर भी देखा जाए तो कंटेन वाटर, जैसे हैंड पंप्स वगैरह जो हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह वगैरह जो हैं, these are it has, that is a water of underground water. एक तो जमीन के ऊपर से कवर है इन द फॉर्म ऑफ सी ओशंस, वो तो है, लेकिन जमीन के अंदर भी जो है अंडरग्राउंड वाटर है, उसका हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल, हैंड पंप्स वगैरह वगैरह जो लगे हुए हैं। देन कम्स लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स जमीन का वो हिस्सा जो आउटर क्रस्ट है, जो हम जिस पे हम रहते हैं, जो जमीन का जो आउटर क्रस्ट है, द पार्ट ऑफ अर्थ, द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का जो हिस्सा जो दिखता है आपको, जो ऊपरली सतह है, ऊपरली प्रात है, जमीन की ऊपरली प्रात जो सॉइल, रॉक्स वगैरह वगैरह से मिलकर बनती है, इसे लिथोस्फीयर्स बोलते हैं। तो अब ये जो है, अब हम इसको आगे जो है नेक्स्ट हमारा आएगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, ये कैसे रिसोर्सेज, चूँकि जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, आइदर उनको हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ऐसी कुछ रिसोर्सेज हैं उनको हम पानी से लेते हैं, और कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको हम लिथोस्फीयर से लेते हैं। लेकिन आज का जो है वो इसी पे इख्तिताम करेंगे हम। इट इज़ सफिशेंट फॉर दिस, आज के लिए जो है ये सफिशेंट है। अब इसको हम आइंदा इन डिटेल जो है नेक्स्ट आएगा, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और किस किस चीज़ से हमको मिलते हैं। हमने अभी अर्थ को डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। एक तो ज़मीन से ऊपर का जो हिस्सा, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हमारे आर्बोलियर और एरियल ऑर्गेनिज्म, दैट इज बर्ड, कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन द एटमॉस्फेयर, एंड वी कैन ब्रीथ इन दिस एटमॉस्फेयर, वी टेक गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे हम सांस लेने का है, जो हम बहुत सारे अपने
ऑर्गन्स को हिलाते हैं, मूव करते हैं, हम चलते हैं, वी परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज इन द एटमॉस्फेयर. वी नीड लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर तो हम जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम अपने पाँव रखते हैं, वो दैट इज लिथोस्फीयर. एंड वी नीड वाटर, हमारी बॉडी को कूल करने के लिए बहुत सारी है कि हमारा वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ ए ब्लड, and blood is a fluid. Unless and until there is no water, it means there is no blood. When there is no blood, there is no life. It means all these three spheres, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, are internally related to each other. One is incomplete with another. So if any one of these resources are not available, life is not possible on the earth. These are the basic conditions, that is air, water and the soil, which are essential, which are basic condition for life. It is why we are living on this unique planet. और सारा जो हमको चाहे वो मिल जाता है इसमें. तो नेक्स्ट, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक्स.